In today's video, I will share with you 10 habits that can help you fix 99% of your problems. Hi there, this is Shreyashi. If you're new here, I create content around self-improvement, relationships, books, and adulting in general. So if that is something that interests you, please make sure to hit that subscribe button down below and join the community. Let's start by categorizing your life in 3 categories. That is health, which will include physical and mental health. Second would be relationships, and third would be finance. सो आई अज्यूम कि हमारी लाइफ की जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इन 3 कैटेगरीज में ही होती है कहीं ना कहीं. लेट्स सी कि इन कैटेगरीज के प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कौन सी हैबिट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हम ये प्रॉब्लम्स जो हैं अपने वो सॉल्व कर पाए. सो लेट्स स्टार्ट विथ हेल्थ, विच इंक्लूड्स फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हो फॉर बोथ योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इज exercise. Now again, I do not want you to think of this video like every other video, and हर वीडियो में आजकल लोग meditation, workout की बात करते रहते हैं, and आपको लग रहा होगा कि oh god, this is another video talking about the same thing. But hold on, I just want to quickly just highlight this point, because when it comes to health, we cannot skip this point. So this is very important, and I'm not asking you to work out extensively every single day, but छोटी सी हैबिट जो आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी लाइफ में वो ये है कि आप एटलीस्ट 20 मिनट के लिए डेली कुछ भी कर लो. लाइक यू डोंट नीड टू वर्क आउट एज सच. फॉर स्टार्टर्स, यू कैन स्टार्ट विथ walking or running around the house. Just be active for 20 minutes every single day. अब उस 20 मिनट में आपको जंपिंग जैक्स करने हैं, या थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना है, योगा करना है, या जस्ट घर में वॉक अराउंड करना है. डू समथिंग, बट जस्ट बी एक्टिव फॉर 20 minutes, preferably in the morning, and that is a small habit that can drastically improve your physical and mental health. Quickly moving to point number 2. The second thing that can improve your health, and which has improved my health, at least mental health, that is praying or having faith in a superpower, or having faith in God. So पिछले 2 सालों में मैंने इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास करना स्टार्ट कर दिया है, भगवान पे, prayers पे, and it has really changed my life. Like it has made me a much more peaceful person, a much more calmer person, and a much more understanding, and बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं. बताना मुश्किल है, बट इट्स वेरी पॉजिटिव वॉट एवर आई फील. सो आई थिंक वी ऑल मस्ट इंक्लूड praying in our everyday schedule. ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं है, बस 2 मिनट के लिए रोज़ just pray to the God that you believe in. जो भी आपके भगवान हैं उनको बस 2 मिनट के लिए याद कर लो daily, preferably after you take bath in the morning, and you will notice that your life will improve for better, your mental health will improve for better. Number 3, meditation. अभी every single day just take out 5 minutes of your day starting के लिए, and try to meditate. Close your eyes wherever you are and just breathe. Like कुछ नहीं करना है, बस सांस लेनी है, अच्छी रिलैक्सिंग ब्रेथ्स लेनी है, and I think this small exercise brings drastic improvement in our physical and mental health. जब आप मेडिटेट करते हो तो आप थोड़े माइंडफुल भी हो जाते हो, आप प्रेजेंट में रहना सीख जाते हो, क्योंकि आजकल क्या होता है, हमारा जो ध्यान है हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होता है. वी आर ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड बाय आवर फोन्स और समथिंग ऑन द अदर. बट व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू मेडिटेट, आपका जो माइंड है वो थोड़ा प्रेजेंट में रहना सीख जाता है. बेसिकली यू आर माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर डूइंग एट द moment. Now that was about health. Let's move on to the second category, that is relationships. Now I being a life and relationship coach, मैं बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, and उनके problems जो है relationship को लेके वो मैं सुनती हूँ. तो I have quite a lot of experience by now कि क्या issues आते हैं, and how a lot of you are trying to overcome from a breakup or situationship or relationship issues etc. And that's why relationship category रखना बहुत important था इस वीडियो में, because जब मैं 99% of our life problems को सॉल्व करने की बात कर रही हूँ, तो आई थिंक रिलेशनशिप इश्यूज बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है आजकल हमारी लाइफ्स की. इन दिस कैटेगरी आई हैव 2 points. द फर्स्ट वन इज यू मस्ट ऑलवेज बी ओपन टू न्यू रिलेशनशिप्स. नाउ हमारे साथ क्या होता है, वी आर ह्यूमंस, सो वी हैव अटैचमेंट इश्यूज. लाइक वी गेट अटैच्ड टू पीपल, बट व्हेन वी ब्रेक ऑफ, we
are not ready to accept that breakup, and we are seeking closure, we are trying to contact them back, हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस से रिलेशनशिप में आने की कोशिश कर रहे हैं. But what we don't realize is that sometimes when we know that it's not working out, we need to let that thing go and we need to be ready or be open for new relationships. It's not easy, I'm not saying it's easy, बोल दिया हो गया ऐसा नहीं है, but if you're going through a bad phase in your relationship, or if you're broken off from a relationship and थोड़ा time हो गया है, instead of being sad, being depressed, being not in a good place, it's better that you be open to new people, be open to new relationships. So do not shut yourself down. अपने आप को एक दीवार मत खड़ा कर लो अपने आसपास कि नहीं अब मुझे किसी से बात नहीं करनी, नहीं अभी मुझे किसी से दोस्ती नहीं करनी, किसी से रिलेशनशिप में नहीं जाना, because I've had one bad experience, so I'm done with everything. Don't do like that. You have to be open for new relationships. Number 2, which is related to this point, is you must meet new people. Being open to relationship is the first step. The second step is you have to meet new people, because जब आप उसी इंसान से attached रहोगे, even though things have fallen off, you are basically stuck in your life. अपनी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप वहीं पे अटके हुए हो, एंड ना आप आगे जा रहे हो, ना आपकी जो प्रेजेंट लाइफ है उसमें कुछ अच्छा हो रहा है. सो इस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट ये है दैट यू नीड टू मीट न्यू पीपल. Now again, I understand कि most of us are introverts these days, and हमारे लिए randomly एक क्लब में जाना, पब में जाना and किसी से बात करना, it's very difficult. For that, my friend, we have dating apps. Now when I coach people one-on-one, I often tell them that it's okay to go on dating apps, क्योंकि अभी भी काफ़ी लोग हैं हमारे जनरेशन के लोग जो कि इसको बहुत ज़्यादा स्टिग्मा की तरह लेते हैं कि डेटिंग ऐप्स पे कैसे जा सकते हैं. हम तो shaadi.com पे हमने प्रोफाइल बनाई है, वी आर लुकिंग फॉर आवर प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स ऑन shaadi.com, और मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर डाल सकते हैं, बट दे आर वेरी अफ्रेड व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग dating app profile. But I recommend people to create one because I think it's a very good platform to get to know people, get to talk to people. I'll not talk much about it, but I think if you're an introvert and if you cannot randomly go to people and talk to them, it's a good place to find people who are looking for relationships. That way you get a chance to talk to multiple people, get to know what you like, get to know what suits you, get to know the other people, what are people looking at these days. So काफ़ी I think expand होता है आपका horizon, and it also helps you move on from that past relationship that you're stuck on right now. Now let's talk about the third category, that is finance. Now the first thing that you can do to fix your financial problems is to learn high income skills. Now this is a digital world, this is an AI world, and there are a lot of new skills coming up जो कि पुराने लोगों को नहीं पता है. So you can take that advantage, learn new skills. बहुत सारे courses available हैं, Coursera, Udemy. You just need to have the intention. If nothing, you have a lot of YouTube videos where you can learn all these skills, and you have to identify कि कौन सी high paying skills है at this time, and then you can pick up some jobs or some freelancing jobs. There are so many opportunities right now. You just have to look for it. But yes, you have to skill yourself with the right skill set so that people hire you or people are ready to pay you. Now second thing that you can do to fix your financial problems is अगर आपकी एक already constant earning आ रही है, and अगर आपका एक प्लान नहीं होता है हर मंथ, लाइक आपके जब पैसे आते हैं मंथली, तो आप क्या करते हो, उसका कितना % सेव करते हो, कितना % इन्वेस्ट करते हो, कितना % खर्च करते हो, ये एक डिविजन होना चाहिए आपके मन में. Now if you're just keeping that amount in your bank and using it as per your convenience, तो आपकी कभी भी proper एक saving नहीं होने वाली, पैसे बढ़ने नहीं वाले, right? So you need to invest your money, you need to know how to invest. Every month you should take out a portion of your income or salary, say 20-30%, and invest it so that वो money जो है आपका grow करे over time. So you have to make your money grow, right? And for that you need to invest. So every single month, make sure that you categorize your salary into different portions कि हाँ इतने में मैं house rent और ये सब करूँगा, gas bill, electricity bill करूँगा, इतने में मैं shopping करूँगा, and इतने में मैं खुद पे खर्च करूँगा, and इतना portion I will save it. It's best कि पहले आप सेविंग वाला पोर्शन निकालो, सेविंग एंड हाउस रेंट एंड जो फिक्स चीज़ें हैं जाने वाली वो निकाल लो. उसके बाद जो भी बचा है उसमें ही आप वो सब खुद पे खर्च करने वाली चीज़ें करो. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड वे दैट यू कैन सेव मनी एंड इन फैक्ट यूज़ योर मनी टू मेक मोर मनी.
So we have discussed all three categories so far, but I have 3 bonus points that I want to talk about, but these are not into any categories as such. First thing is you should spend less time online, because जितना time आप online spend करते हो ना, वो पहला तो waste होता है. And you know, even I have faced it. ये मैं कोई बहुत expert नहीं हूँ इस मामले में, but I am doing this and it's helping me, and that's why I'm sharing these things. So try to spend less time online, because हमें realize नहीं होता कि हमारे दिन का कितना time हम social media पे spend करते हैं. आपने अभी तक नहीं किया है तो अपने फ़ोन में वो timers, trackers लगा के रखो and check करो कि आप कितना time spend करते हो and try to reduce that time. The second thing जो कि ये first thing से आती है वो ये है कि you need to stop comparing. क्योंकि जब आप सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग दिखते हैं इन अ पॉलिश्ड परफेक्ट वे, एंड दैट मेक्स यू थिंक दैट आप कुछ नहीं हो. आई हैव सेड दिस बिफोर एंड आई विल से इट अगेन. ट्राई टू फॉलो लेस पीपल ऑन सोशल मीडिया, बिकॉज इससे क्या होता है, जब आप लोगों को फॉलो करते हो आपको लगता है कि अच्छा वो तो सेलिब्रिटी है, उसको तो फॉलो करना ही है. आई डोंट नो फ्रॉम वेयर दिस मेंटालिटी हैज कम दैट वी नीड टू फॉलो ऑल द सेलिब्रिटीज. किसने बोला है कि फॉलो करना है? आई डोंट थिंक हमें फॉलो करना है. और वी नीड टू फॉलो ऑल द बिग इन्फ्लुएंसर्स. वी डोंट नीड टू. नाउ ऑल्दो ये माइंडसेट बिल्ड हो गया है एंड यू नो इट हैज बिकम लाइक अ फोमो थिंग कि अरे तुम उसको फॉलो नहीं करते, तुम उसको फॉलो नहीं करते. मैं पिछले 2 सालों से किसी भी सेलिब्रिटी को एज सच फॉलो नहीं करती हूँ. And my life is doing just fine. I am doing just fine. I don't follow big influencers. I don't follow big celebrities. And it's not needed, trust me. जो थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो फ्रेंड से पता चल जाती हैं कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट यू डोंट नीड इट. एंड मोरोवर क्या होता है कि जब आप ज़्यादा देखते हो ना दूसरे लोगों को, तो आपको कहीं ना कहीं वो कंपैरिजन वाली चीज़ आ जाती है एंड फिर आपको लगता है कि ओ मेरी लाइफ कभी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, या मेरी लाइफ में ऐसा क्यों नहीं है. वो चीज़ अच्छी नहीं होती आई थिंक ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए. वो कंपैरिजन, वो यू नो फीलिंग लो अबाउट योर सेल्फ और नॉट फीलिंग वेरी गुड अबाउट योर सेल्फ, दैट फीलिंग इज़ नॉट गुड. क्योंकि हम में से बहुत कम लोगों के अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जो कि इस कंपैरिजन को तोड़ के आगे बढ़ पाए, ये बोल पाए कि नहीं मैं तो ये देख रही हूँ बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा बिकॉज आई एम बेटर देन ऑल ऑफ देम. इतने कॉन्फिडेंट हम नॉर्मली नहीं होते हैं. सो इट्स बेटर दैट यू स्टॉप लुकिंग एट दीज पीपल. थोड़ा एनालाइज करो, सोचो कि जब आप उनको देखते हो तो आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है. डू यू फील वेरी हैप्पी लुकिंग एट देम? इफ दैट इज द केस देन इट्स गुड फॉर यू. मेरे लिए ऐसा नहीं है. लाइक व्हेन आई लुक एट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इट डजंट मेक मी फील दैट गुड, और अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ऑल्सो. तो मैं नहीं देखती हूँ एंड आई एम डूइंग जस्ट फाइन. अब तीसरी चीज़ जो है वो है माइंडसेट का गेम. अब मैंने ये कैरल डवेक की बुक पढ़ी थी माइंडसेट. उसमें बोला गया था अबाउट फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट. 2 तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले, एक होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले. फिक्स्ड माइंडसेट होता है कि कोई भी अगर आपके सामने प्रॉब्लम आती है ना तो आप सोचते हो कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, मतलब मैं थोड़ी ना कर सकती हूँ ऐसा. बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो कोई भी प्रॉब्लम जब आती है उनकी लाइफ में तो वो उसको ऐसे देखते हैं कि क्यों नहीं होगा, मैं कैसे कर सकता हूँ इसको, मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा. दे सी प्रॉब्लम्स डिफरेंटली दैन द फिक्स्ड माइंडसेट पीपल. फिक्स्ड माइंडसेट हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट दैट उनसे एक लिमिटेड चीजें ही हो सकती हैं एंड वो उसी में खुश हैं. लाइक दे आर हैप्पी इन देयर ओन सेफ कंफर्ट जोन. बट जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं दे फील मोर चैलेंज्ड व्हेन दे गेट टू डू समथिंग दैट इज आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन. कोई नई चीज उनको मिलती है तो वो बहुत चैलेंज्ड फील करते हैं. दैट मेक्स देम एक्साइटेड बिकॉज दैट हेल्प्स देम ग्रो. सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द ग्रोथ माइंडसेट कैटेगरी. सो ऑलवेज ट्राई टू बी इन द ग्रोथ माइंडसेट, बिकॉज ये जो दुनिया है ना, मतलब जो लोग हैं ना, वो अक्सर आपको फिक्स्ड माइंडसेट में जब आप रहोगे ना तो वो खुश होंगे. लाइक पीपल विल बी हैप्पी व्हेन यू आर इन अ फिक्स्ड माइंडसेट. बट आपको खुद चूज करना है कि आपको फिक्स्ड माइंडसेट में रहना है या आपको ग्रोथ माइंडसेट में जाना है. एंड यू नो यू हैव टू जस्ट बिलीव दैट यू कैन डू एनीथिंग. So those were all the points that I wanted to discuss in today's video. I hope you liked it. I hope you found it useful. And if you did, please make sure to hit a like on this video, share it with your friends and subscribe to my channel if you haven't done so yet. And I will see you again very, very soon in my next one. Till then, bye-bye. Take care.